मैं अपनी ब्रीफ जर्नी के बारे में बता रहा था कि 2017 में मैंने शुरू की थी अगस्त में प्रिपरेशन। देन 1 ईयर की मैंने कोचिंग ली फ्रॉम ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। एंड इन मे 2000 इन इन जून 2018 आई डिड राइट माय फर्स्ट प्रीलिम्स, दैट वाज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 प्रीलिम्स, एंड आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स आफ्टर 7 or 8 months of coaching and then 1-2 months of preparation. And after that I started to prepare for mains, but I was not prepared for the mains. That was my mistake, so I could not clear the mains. Then after the mains result I started to prepare again for the next year's mains. And I was confident of prelims, so I did not prepare much for the prelims. So I did focus on the mains part only. So in 2019, I could clear the prelims, I could clear the mains, but in interview or the interview and the mains both cumulatively, I could not clear. So I gave the interview, but the final selection was not there. Then in 2020 exam, I focused more on mains, making notes and reading more stuff, or diversifying my content, or making my answers unique. So all those things I decided to do. एंड वो सब मैंने किया 2019 के इंटरव्यू के बाद। और फिर 2020 में फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी 73rd रैंक आई, और मुझे आईएएस मिला, और कैडर आई एम इन गुजरात कैडर राइट नाउ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस मैं लूंगा। जैसे कि आप में से एक ने पूछा था कि हाउ टू मेक नोट्स। सो making notes takes a little bit time, in the sense that you must know how to make notes before starting to make notes. Okay, so first of all you have to go through the whole syllabus, or at least syllabus of that particular subject. एंड उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीलिम्स के एज वेल एज मेंस के, दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसमें से क्या क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है। तो आफ्टर दैट यू कैन नोट डाउन, और आफ्टर वन मोर रिवीजन देन यू कैन नोट डाउन द then you can note down certain facts or certain things from the textbooks or advanced books to your notes. So that is how you make notes. Okay, so do not start to prepare notes from the day one. So it will be a disaster for you, because you will keep on making notes, but there will be no relevance of those notes with the examination. So that is one thing about the notes. So in Gujarat, in which city? I am in Bharuch city in Gujarat. Then they are asking about timelines for UPSC 2024. Okay, so if you are preparing from right now for 2024, it means the next year prelims, okay, or the next year exam. So presently we are in March, or we are in start of April. So from here onwards, if you are beginning now, then you have to do all the basic books like NCRTs and the other books which are suggested by toppers, or your coaching, or from any standard guidance program, where you can get the list of books. So NCRTs plus those books like Lakshmikant for polity, GC Leong for geography, like this. So do those books at least for twice before December, and from December or November you start to write prelims test series. Okay, तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो आप में धीरे धीरे उसको एज ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग लेना है, रादर देन evaluating your knowledge. It is because in the beginning you will have to learn from the test series, otherwise you will not be able to identify the your weaknesses. Okay, so do not take it as your performance analysis, take it as a part of your learning. So December, January, February 2024 you will write mock tests of the prelims. And during October, November, you can also write certain answers of the mains from the previous years, so that you do not get bogged down when you clear the prelims in the month of June or July, or May or June of 2024. So you should be having certain knowledge about the mains exam as well beforehand. So and till February you can do mains study plus
mock test of the prelims, and then from March, April, and May of the next year, means 2024, you have to do the complete focus on the prelims, because at that time you will be involved in mugging up the facts, making some brief notes, or maybe some acronyms of some long terminologies, so that you will be able to recall those terminology or that fact in the examination time. So for 3 months you have to do the prelims and then appear in the prelims. So that would be my strategy for the 2024 prelims or the exam. Then after prelims of 2024, you can write test series for the mains also. Okay, and for 3 months, and then appear in mains, and then you will be appearing in interview. So that will be the timeline as you had asked earlier. So yes, there is one question: how to prepare for 2026. I will come to it later on. But before that, there is a question, sir, CSET के बारे में बता दीजिए. Okay, CSAT. Okay. So CSAT is also a very crucial issue in prelims examination, because many people do not qualify. Even people with the mathematics background or have done the engineering degree, then also they are not able to qualify the CSAT exam, CSAT paper. So that is one unfortunate thing which happens sometimes. It happens because of our overconfidence. Okay, so those who have done engineering or who had mathematics background in 12th, they can what they can do is they can write 2 or 3 previous year question papers of the CSAT. So if they are able to get above 120 or 110, then it's fine. There is no need to do any additional practice for the exam, for the CSAT paper. But if you are getting less than 100 or less than 90, then you must prepare for this paper, because it will be disaster if you do not focus on this paper, because you may be getting 130-40 in the in the GS paper of prelims, but if you are not getting 67 marks in CSAT, then it will be very difficult for you to qualify the prelims examination. So for this, what you can do is you start to giving mock test. First of all, start with the previous year questions, and you will be able to identify your weaknesses, like whether you are able to do mathematics or the logical reasoning questions well or not. And if you are not able to do, then you can take a coaching. Okay, there is no harm in taking certain guidance from some teacher or some senior, because your ultimate aim is to qualify the exam. There is do not bring your ego in between. Okay, because sometimes what happens के मैं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सीसेट की कोचिंग क्यों लूं? तो ऐसा मत सोचिए, आप ले लीजिए कोचिंग यदि आपको लगता है तो। और यदि नहीं भी लगता है, तो फिर आप अपना कोई जो नोट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वो आप प्रोक्योर कीजिए। उनको उसमें जो मेथड्स बताए हुए हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने को, उनको ट्राई कीजिए, देन फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। जैसे एज के क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, देन ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ पाई चार्ट के आते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, तो आप जो कॉम्प्रहेंशन आते हैं, तो उनको आप उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। उसमें आप ज़्यादा अपना थॉट प्रोसेस मत लगाइए कि क्या हो रहा है, या ऐसा जैसे कोई लॉजिक, उसमें भी चेन ऑफ थॉट्स होती है उसी किसी भी एक कॉम्प्रहेंशन में। तो उस चेन ऑफ थॉट्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए जब आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ रहे हैं तो। और फिर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके नीचे के 2 या 3 जो भी होते हैं उसमें, तो फिर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। उसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो दिया हुआ है, उसी के बेसिस पर अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। क्योंकि यदि उसमें लिखा हुआ है कि एक आम एक केला है, एक आम एक केला होता है, तो वो होता है फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, यू डू नॉट अप्लाई योर माइंड, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज ओनली। यू डू नॉट अप्लाई योर माइंड एट ऑल। ओके, सो ये आप ध्यान रखिए। तो इससे आपके कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस भी करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड हिंदी मीडियम में दे रहे हैं यदि कॉम्प्रहेंशन, देन ऑल्सो आप वो कर सकते हैं कि सेम जो है लाइन ऑफ थॉट जो है आप पैसेज का ही रखिए, अपना खुद का लाइन ऑफ थॉट मत लगाइए। ठीक है, और
उसमें जो भी जैसे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसमें एलिमिनेशन पर ध्यान दीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन में पर्टिकुलरली, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत ही वेग होते हैं, तो उनको आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि 2 जो लास्ट के ऑप्शंस होते हैं उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसमें भी हमें बस एक फर्स्ट हैंड रीडिंग में जो हमारा दिल करता है ना, जो मतलब हमें फर्स्ट इंस्टेंस में जो फीलिंग आती है कि यस, और द इंट्यूशन आती है आफ्टर रीडिंग द पैसेज, नॉट फ्रॉम योर ओन माइंड। ओके, तो आफ्टर रीडिंग द पैसेज जो इंट्यूशन आती है उसको आप करेक्ट कीजिए, मार्क कीजिए। अदरवाइज आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो मे बी कंफ्यूज होकर आप गलत भी कर सकते हैं। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर सीसेट, और इसके लिए भी आप टेस्ट सीरीज में ये आप फोकस कीजिए। कम से कम 10 से 15 टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट दीजिए सीसेट के, यदि आपको इश्यू है तो। ओके, so this is the strategy about the CSET. Then for beginner, how much time should one give to optional and GS? For beginner, see, यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इनिशियली 1-2 महीना अपना जीएस ही कीजिए, ठीक है? 2 महीना जीएस कीजिए कंप्लीटली 100% प्लस न्यूज़पेपर। देन आफ्टर 2 मंथ्स यू स्टार्ट टू टेक अप द ऑप्शनल सब्जेक्ट आल्सो। फिर आप 4 महीना या 5 महीने के लिए हाफ हाफ टाइम दीजिए दोनों को, 50-50%, ठीक है? देन फिर फाइनली आप दोनों के टेस्ट सीरीज लिखिए कम से कम 2 महीने में, मतलब 2 + 5, 4 और 5 प्लस 2 मंथ्स, उसमें आप टेस्ट सीरीज लिखिए दोनों का हाफ हाफ टाइम में। देन उसके बाद आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कीजिए, यदि आप प्रीलिम्स को क्लोज कर रहे हैं तो मीन्स आप मार्च तक पहुंच गए हैं, तो मार्च अप्रैल मई में कंप्लीटली प्रीलिम्स के लिए ऑप्शनल को कंप्लीट छोड़ दीजिए। फिर आप मेंस के बाद वापस से हाफ हाफ टाइम दीजिए, सॉरी प्रीलिम्स के बाद आप वापस से हाफ हाफ टाइम दीजिए दोनों जीएस और ऑप्शनल को, और वो कंटिन्यू रहेगा आपका मेंस एग्जाम तक। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगा मेंस वर्सेस प्रीलिम्स, ऑप्शनल वर्सेस जीएस में। प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। सो प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मेरा ये था कि सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देता था, तो उससे मुझे पता लग जाता था कि मेरा एक्चुअल लेवल क्या है। एक्चुअल लेवल इन द सेंस कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो मे बी वो कईयों का 80 भी हो सकता है, इट मे बी 90, मे बी 95, मे बी 99। सो आई यूज्ड टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मींस 98, 99 और 100, दैट वाज माय ऑप्टिमम level of questions attempt for getting maximum marks. So you have to analyze this thing in your mock test so that you get to know like what is my optimum number of questions. Then फिर मैं 3 राउंड्स में प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्ट करता था, वो मैं मॉक टेस्ट में भी करता था और एक्चुअल एग्जाम में भी करता था। 3 राउंड्स इन द सेंस कि फर्स्ट राउंड्स में इन द फर्स्ट राउंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई वुड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस व्हिच आर doable in the first instance, because there are certain factual questions and I had knowledge from my studies and I could attempt those questions directly. So around 30 to 35 questions I would do in the first round, and in the same round I would identify those questions on which I have to think, means around 50 to 60 questions I would round on that question number. I would do a round so that I can identify like the questions which are not rounded, which that I have attempted already, and which are rounded I have to think and then attempt. So that will be questions for my second round. So in second round I would give little bit thought to the questions which are rounded, and then I would identify the questions which I could do from my memory, or giving certain effort to my memory, and I could recall certain fact and I could attempt. So in that process I would do some 30 questions more. So 35 plus 30 I have reached 65 or 70 questions. Okay, now left with 30 questions. Now out of 30 questions, now my third round starts. Okay, so now in my third round what happens, I would start to guess certain facts, and then maybe I would identify the questions which are not doable at all because I have not read anything about that particular question. So I would do a cross on that questions. Okay, so I would not attempt those questions in the end as well, because 3 or 4 questions would be such I would not be able to attempt. So now I am left with 25 questions. So 25 questions I would do with elimination, with guesswork, with certain tukka as well, because nobody knows everything. So tukka bhi aapko lagana padta hai. So this was my attempting strategy.
एंड बबल में जो बबल फिल करते हैं उसमें भी आपको स्ट्रेटेजी रखना है कि हर एक राउंड का जो फर्स्ट राउंड की बबल है आपको फर्स्ट राउंड के एंड में भरने हैं, सेकंड राउंड के बबल सेकंड राउंड के एंड में, एंड थर्ड राउंड के बबल आपको साइमल्टेनियसली भरने हैं। जब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, जैसे 25th क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया थर्ड राउंड में, तो इमीडिएटली फिल अप द बबल, बिकॉज इन द एंड यू नेवर नो व्हेन द टाइम एंड्स and at what point you will be left with not filling the bubbles. Okay, so you have to simultaneously fill bubbles as well. So that is the attempt, that is the strategy for attempting prelims paper. So सर कॉलेज में है और 2026 में एग्जाम देनी है, तो डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें या एक सब्जेक्ट पढ़कर बाद में सेकंड सब्जेक्ट? देखो, यदि आप कॉलेज में हैं तो आप 2026 का भी देना है आपको एग्जाम, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए एक टाइम पे, देन उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए। ओके, और एक सब्जेक्ट जैसे ही पूरा होने को आता है तो आप उसका ये क्या कहते हैं, एक मॉक टेस्ट भी दीजिए उसका प्रीलिम्स का, जिससे आपका नॉलेज है वो कंक्रीट हो जाए, क्योंकि एक बार नॉलेज आपके दिमाग में तो गया है लेकिन आपका वो कंक्रीटाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप उसको कंक्रीटाइज करने के लिए आप टेस्ट सीरीज भी दें साथ में, और अपना ये देते रहें, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहें। ठीक है, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन टेस्ट सीरीज? क्योंकि सो स्पीड का तो इतना, जैसे 2 आवर्स मिलते हैं मैम प्रीलिम्स में। आर यू टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स? आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर आस्किंग अबाउट प्रीलिम्स। सो इन प्रीलिम्स 2 आवर्स आर देयर। सो इन 3 राउंड्स जैसा मैंने बताया है, उसमें जैसे फर्स्ट राउंड है वो आप 50-55 मिनट्स में खत्म कर लीजिए, तो उससे आपका फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा पूरे पेपर का, और उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए लगभग 30 to 35। देन सेकेंड राउंड में आपका 30 मिनट्स और ले लीजिए, 30 to 35 मिनट्स, सो 55 + 35 यू हैव रीच्ड 1 hour and 30 मिनट्स। सो उसमें लगभग आप 60 to 70 क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद फिर जो लास्ट का होता है उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, कि ज्यादा दिमाग इन द सेंस की इलिमिनेशन करना है, गैस वर्क करना है, ये सब चीजें करनी है, तो उसके बेसिस पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम पर लास्ट के हाफ एन आवर में आप थर्ड राउंड के लिए कर सकते हैं, या मे बी 25 मिनट्स में लास्ट के। तो ऐसे करके आप स्पीड को, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसमें स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। Then last 2 months strategy for 2023. Okay, so 2023 is approaching. We have 2 months from today. We have less than 2 months, in fact. So अभी आपको जो आपने ऑलरेडी नॉलेज है उसको रिवाइज करना है, एट द सेम टाइम आपको टेस्ट सीरीज भी देना है। आप डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट दीजिए, डेली बेसिस या ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस, क्योंकि एंड में आप डेली बेसिस पर देना पड़ेगा आपको मई मंथ में। अभी अप्रैल में यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नॉलेज बेस आपको बढ़ाना है, तो आप नॉलेज बेस भी बढ़ाइए हाफ ऑफ द टाइम में। हाफ ऑफ टाइम में करंट अफेयर्स कीजिए, मीन्स 50% टाइम करंट अफेयर्स, 30% or 25% your basics, and then 25% on the mock test. So that should be your strategy right now for the April month. And in the May month, you have to attempt the full length test, at least 15 to 20 full length test you have to attempt before your exam, so that you get the nag of everything. Okay, because in जब हम सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तब हम एक पर्टिकुलर माइंडसेट से सोचते हैं कि ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, और जब हम फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करते हैं, तो वो भी हमें आइडिया होना चाहिए बिफोर राइटिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 2 मंथ्स की। अभी आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं 1 महीना तक, देन नेक्स्ट 20 डेज में या फिर 1 महीने में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना ही होगा। How much mock or mock paper of mains prelims attempt till May 2024 for prelims exam? Prelims exam में कम से कम आप 50 to 60 का रखिए। अब यदि आप 2024 का टारगेट कर रहे हैं तो उसमें ऐसा रहेगा कि 25 मॉक टेस्ट ये रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, और 25 और 30 मॉक टेस्ट रहेंगे इन द एंड। इन द एंड मीन्स इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो उस केस में आपको मतलब 25 + 30 मतलब 55 to 60 मॉक टेस्ट आपको देने होंगे प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए भी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 25 to 30 मॉक टेस्ट देने होंगे, जो संजय कुमार ने पूछा है। देन नीलिमा साहा, व्हाट आर द फैक्चुअल थिंग्स लाइक रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू लर्न?
See, the standard reports which are coming out of the either from the parliament, either from some constitutional body like UPSC, CAG, or Supreme Court. So such reports are important from any international organizations like UN or maybe WHO, FPO. है ना? So these kind of reports you have to remember. Not all the reports, but certain recommendations or certain parameters or the certain figures or data. And also from some committees related to elections like Dinesh Goswami Committee, Indrajit Committee, or Panchi Commission. So these type of commissions recommendation you have to remember. Then how to make notes. Okay, so noट्स में ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि आप स्टार्ट से ही नोट बनाना मत शुरू कीजिए, एक दो बार आप रीडिंग दीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट को, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, दोनों मेंस के एज वेल एज प्रीलिम्स के। उसके बाद आप उसके बाद ही आप जब थर्ड रीडिंग होती है तभी आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाएंगे तो आप यू विल प्रिपेयर अ कॉपी of those that subject itself. You will write a new book, so that is of no sense, because notes should be very short so that you can revise them whenever the exam is there or exam is approaching. तो नोट्स आप एटलीस्ट 2 रीडिंग देने के बाद ही प्रिपेयर करें, और वो भी काफी ब्रीफ में प्रिपेयर करें। वो आपको आइडिया आएगा जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे एंड मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। और यदि फिर भी आपको आइडिया नहीं आता है तो आप एक चीज और कर सकते हैं, जो मेंस एग्जाम है उसका सॉल्यूशंस देखिए आप कहीं से भी, है ना, या फिर कोई टेस्ट सीरीज है जिसके विद सॉल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल, उसको परचेज कीजिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसा आंसर लिखना है। ओके, और कैसा आंसर लिखना है उसके अकॉर्डिंग ही आप नोट्स बनाइए, जैसा आंसर लिखना होता है वैसा ही नोट्स बनाइए, तो आपको इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना है, और ग्रेजुअली आप उसमें इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है। हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी ड्यूरिंग एग्जाम हॉल और प्रीलिम्स एग्जाम। तो एंजाइटी कंट्रोल करने का एक ही मेथड है कि आप व्हाट यू कैन डू इज, जब भी आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा होता है तो आप सिंपली ये सोचिए कि मेरा एक और मॉक टेस्ट आ रहा है, ठीक है, एंड डू नॉट टेक बर्डन ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। यू थिंक लाइक दैट आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम, if I qualify it is fine, if I don't qualify it's also fine, I will write again or I will do something else, because and keep always this thing in mind, like UPSC is not everything. If you are not able to do the UPSC, don't worry at all. There are plenty of various professions which where you can do everything which is there with the there in the services recommended by the UPSC. Okay, so you don't have to worry at all. You never take this on your heart that I have to qualify UPSC at any cost. You simply think like, if I am not able to qualify UPSC, it's very okay, and you will be doing in very good in some other sector, so don't worry at all. So you just give your 100% and write your exam, and don't think about the UPSC that it is everything. I can vouch for this. There are plenty of professions where you can do much more than the services offered by the UPSC. Okay, so this thing creates anxiety, so never ever let it come on your heart. Okay, so think like ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, 15 दिए हैं, एक और दे लेंगे, एक और कल है, वो जैसे कि 28 मई को एग्जाम है तो एक और मॉक टेस्ट है, चलो दे आएंगे। ज्यादा सोचिए मत कि मुझे तो पूरी तैयारी करनी है, मुझे सब कुछ करना है। तो जो आपका इसमें जो प्रोसेस होता है ना, जो पूरा 10 महीने की तैयारी है वो काम आती है, एक दिन की तैयारी इसमें काम नहीं आती है। ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कीजिए 10 महीने जो ऑलरेडी किया है, और रिलैक्स होकर सो जाइए उस दिन शाम को, कि या मूवी देखिए आपको मन करता है तो, कॉमेडी देखिए आपको मन करता है, खेलिए आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो इतना टेंशन मत लीजिए उसका, तो आपका एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप प्रीलिम्स में भी कर सकते हैं और मेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या है, हाउ टू एनालाइज अंडरस्टैंड PYQ लिंक्ड सिलेबस टू स्टडी ज्योग्राफी पोर्शन, एक्सप्लेन डिटेल हाउ टू स्टडी विद लिंकिंग ओनली ऑन इट। I could not understand your question. If you can write again in a very brief, then I can answer this. You are asking something about the geography. So geography में जो questions आते हैं उनको simply आप देखिए कि वो किस field से आया है,
और वेदर इट इज फ्रॉम करंट अफेयर और फ्रॉम स्टैटिक थिंग्स, वो देख लीजिए, उसमें एनालिसिस कर लीजिए। तो स्टैटिक भी आपको करना है। करंट अफेयर्स में क्या होता है, ज्योग्राफी में, ये इन्वायरमेंट के साथ लिंक करके पूछते हैं कई बार, इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन तीनों को, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, इन तीनों को लिंक करके आप देखेंगे तो आपको मेंस के क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि ज्योग्राफी में कैसा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, देन इज कोचिंग नेसेसरी फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल? I don't think it is necessary. I did not do the coaching for anthropology, but let me tell you, it took me lot of time to prepare anthropology on my own. If you want to prepare anthropology on your own, then definitely you can do, but it will take little bit more time because you have to read all the books by yourself, and it will take time. So if you want to save some time, then you can definitely take coaching. There is no harm in this, and make notes from the coaching, whatever teaching is, whatever the teacher is teaching, and then make notes, and then simultaneously you can read the book. So it will save your lot of time. Okay, so that is the answer. In prelims, I am getting marks in 70s. Should I skip the attempt of this year? I am really worried how to improve on it, sir. So if you are getting marks in 70s, then uh, you can attempt the exam. There is no harm. If it would be 30 or 35, 40, then I would say that you can skip the exam, this attempt. So you can definitely attempt the exam, but before that, you have to do certain things. First of all, you have to revise everything which you have already read in last 10, 12, or whatever months. Okay, so revise all those things again, and do the current affairs. Do not ignore the current affairs at all. Do any summary from any coaching of the current affairs which they are offering, like Vision is offering, Vaziram is also offering, Next IS is also offering. So there are plenty of coachings which are offering certain means crux of the current affairs. So at least go through that crux, and you will be getting some number of questions from that crux. So do not think like I should skip this attempt. You attempt this attempt, and you will get to know many things. Okay, when you will be writing the exam, you will get to know many things which you will not be able to get from any mock test. Okay, so you have to have the actual environment of the examination. You have to face that. At least you should experience that. Okay, because nowadays cutoff is also not very high. It is going around 95. So if you prepare well in these 2 months, you will be able to reach at the level of 95 of hundreds. So don't think from now itself that I will skip this attempt. Okay, then Mox Patel, how to choose medium for mains language? That is, medium for mains should be the language in which you are comfortable. Okay, preferably it should be English. But if you are not comfortable in English, then you can choose Hindi or whatever language you want to choose. Okay, there is no harm in it. And trust on UPSC that they will not do any injustice with you, because UPSC is a very means impartial body, and a renowned body for making the level play, making the play level for everybody. Okay, so don't think like that. You can choose either English or whatever language comfortable you are in. Sir, I have doubt. I have not covered optional completely and ethics, not mains ready. Should I skip this year's attempts, or is it doable after the prelim? Okay, so it is doable after the prelims. You can do, uh, but on this basis, you should not think like you should skip the prelims. You just write the prelims. Okay, then after prelims you can you would have 3 to 3.5 months, and in that period you can prepare these subjects. So you should attempt this exam in May. Okay, देन सर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को कितने इटरेशन में करना है? प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को जैसे मैंने कहा कि आप 3 इटरेशन में करना है। मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन से कि एक पेपर को कितने राउंड में अटेम्प्ट करना है। ओके, सो 3 राउंड में अटेम्प्ट करना। फर्स्ट में जैसे मैंने बताया, जो सिंपल क्वेश्चन हैं आपके हिसाब से उनको कीजिए, सेकंड में थोड़ा सा जिनमें सोचना है वो कीजिए, और थर्ड में बिल्कुल ही, या फिर आपको बहुत ही थोड़ा सा आइडिया है लेकिन
आपको बहुत ज्यादा गैस करना है, एलिमिनेशन करना है, तो वो थर्ड राउंड में कीजिए। और बाकी फिर 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। देन हाउ टू चूज मीडियम फॉर मेंस, यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस। ऐसे पेपर सर, हाउ टू मेक नोट्स, सर हाउ टू मेक नोट्स, वो मैं आंसर कर चुका हूँ। अवनीश त्रिपाठी पूछ रहे हैं सर व्हाट टू डू इफ अटेम्प्ट्स आर एग्जॉस्टेड। तो अटेम्प्ट्स आर एग्जॉस्टेड हैं तो आप फिर कोई भी अपना जो स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन है वो लिख सकते हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, राजस्थान, जो भी आपका रेस्पेक्टिव स्टेट का है, और आप उसमें भी एक एग्जीक्यूटिव और बहुत ही अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस की होती है, राजस्थान में आरएएस होता है, गुजरात में जीएस होता है, तो वो भी एक प्रेस्टिजियस जॉब होती है। तो और वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आईएएस ही होती है। ठीक है, तो आप वो लिखिए। और ऐसे पेपर के बारे में पूछ रहे हैं संजय कुमार, तो ऐसे पेपर में ऐसा करना है कि आप सबसे पहले तो को मतलब 8-10 या 20-25 ऐसे पढ़िए। आप कोई भी यूपीएससी में जो पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो एज ए बिगिनर यू शुड रीड दोज सॉल्यूशंस। लाइक एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉपिक में किस किस डायमेंशन को ऑथर ने डाला है, या जो भी टॉपर ने या जिसने भी वो बुक लिखी है उसमें किस किस डायमेंशन को डाला है, और कैसे कैसे वो पूरे ऐसे को मतलब डिजाइन कर रहे हैं ना। तो आप समझिए पहले तो 20-25 ऐसे में, तब आप फिर जो अदर जो भी ऐसे टॉपिक होते हैं वो दोज मे नॉट बी इक्विवेलेंट विद द यूपीएससी लेवल। ओके, तो आप वो कीजिए, और फिर आप कोई भी एक ऐसे टॉपिक उठाइए, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं टॉपर्स के या किसी इंस्टीट्यूट के, कि आप ऐसे को स्टार्ट कैसे करना, ऐसे लिखना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो आप कीजिए। वो आप कैसे करेंगे कि उसमें जो वीडियो होते हैं उसमें वो सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के बारे में सोचिए कि एक ऐसे को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, देन उसकी बॉडी कैसे लिखनी है, बॉडी में क्या क्या डायमेंशंस आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद एंड में कंक्लूजन भी कैसे डिजाइन करना है, वो सब चीज आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम आप जो सॉल्यूशंस जो मैं पहले बात कर रहा हूँ वो देखिए 20-25, तो इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे और एक साथ में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे लिखना है किसी भी एक ऐसे को। तो ऐसे आप लिखिए 8-10 ऐसे लिखिए आप। इनिशियली आपको हो सकता है टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा मान के मत चलिए कि आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं। आपको कई बार ऐसा भी होगा कि 4 घंटे में आप एक ही ऐसे लिख पाए, बट आपको उस स्टेज से निकलना पड़ेगा। ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच द स्टेज वेयर यू कैन राइट 2 essays in 3 hours। ओके, तो आप पहले 4 आवर्स में एक लिखेंगे, फिर 2 आवर्स में एक लिखेंगे, धीरे ग्रेजुअली, तब जाके वो आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। ओके, सो आपको कम से कम 10-20 या 25 ऐसे आपको खुद को लिखने पड़ेंगे, तब इस पॉइंट ऑफ ऐसे आप अपना ऐसे का पेपर तैयार कर सकते हैं। देन पूछा है सर हाउ वी कैन इम्प्रूव एलिमिनेशन टेक्निक फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। यस, टॉपर्स कॉपी हेल्पफुल फॉर एसेस, डेफिनेटली टॉपर्स कॉपी हेल्पफुल रहती हैं। वो आप कई सारी जो कोचिंग की वेबसाइट्स हैं उस पर अवेलेबल रहती हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उनको अच्छे से पढ़िए। देन सर हाउ वी कैन इम्प्रूव एलिमिनेशन टेक्निक फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आप क्या कर सकते हैं कि जब एलिमिनेशन कर रहे होंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से, और उसमें जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें से आपको किस ऑप्शन में वो लग रहा है, या फिर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, देन फिर ऑप्शन में दे रखा है 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 एंड 1 ओनली, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम, ऐसा करके दे रखा है। तो आप पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए, फिर आपका जो इंट्यूशन आता है या आपका नॉलेज बेसिस से आप उसमें से 1-2 स्टेटमेंट आपको पता लग जाने चाहिए। ठीक है, 1-2 स्टेटमेंट पता लगने के बाद फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि या फिर कोई क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट आपको गलत पता लग जाता है, जैसे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड। तो आपको फिर ऑप्शन से चलना पड़ेगा कि थर्ड इज रॉन्ग बट फर्स्ट इज करेक्ट, सो 1 एंड 2, देन 2 एंड 3 है, 3 एंड 1 है, सो थर्ड इज रॉन्ग, तो 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1 आर eliminated, then 1 2 3 is also eliminated, then 1 and 2 are left, तो 1 and 2 आपको करेक्ट होगा। हो सकता है आपको 2 के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं हो,
लेकिन आपका 1 एंड 2 करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन को वर्कआउट कर सकते हैं। देन इंटरव्यू के लिए हाउ टू प्रिपेयर। इंटरव्यू जब भी आपका आता है तो वो आपका मेंस के बाद आता है ऑब्वियसली। तो मेंस में बहुत सारा आप नॉलेज गैदर करते हैं और जो मेंस का नॉलेज है उसी बेस को आपको बिल्ड अप करना है फॉर द इंटरव्यू पर्पज। ठीक है, तो वही जो नॉलेज बेस था उसी को थोड़ा बिल्डअप करना है। उसके अलावा आपको अपना जो प्रोफाइल होता है खुद का, कि जैसे माय नेम इज कल्पेश शर्मा, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्पेश, एंड सो बिफोर द इंटरव्यू दे मेक यू फिल ए फॉर्म कॉल्ड द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डेफ। So in that depth form, everything comes like your graduation subjects, your schooling, from where you did schooling, your home state, everything. So ये जब ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है कि आपका स्कूल कौन सा था, स्कूल के नेम में यदि महात्मा गांधी आ रहा है तो महात्मा गांधी के बारे में आपको प्रिपेयर करना है, बी आर अम्बेडकर आ रहा है तो अम्बेडकर साहब के बारे में आपको प्रिपेयर करना है। देन आपका कॉलेज में इंजीनियरिंग रहा है या मेडिकल रहा है तो उसका बैकग्राउंड आपको समझना है कि मेडिकल से आप सिविल सर्विसेज में क्यों आ रहे हैं, या मेडिकल में क्या क्या फील्ड होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं मेडिकल का, तो आपको उसके बारे में भी समझना पड़ेगा। ओके, तो ये इस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है। Then I am not from science background. Can you please suggest a source to cover basics of science in less time? So the best source for covering science is the NCERTs. Okay, so Hindi में भी वो available हैं if you are comfortable with Hindi, or if you are comfortable in English, then Hindi and English both they are available NCERTs. Then you go through those NCERTs, but it will be a little time taking process, but you have to go through that. And apart from that, what you can do is there is one book called General Knowledge by Lucent. Okay, so in that book all the factual information is given about the science also, apart from the other subjects. So about 40, 50 or 60 pages are there for there in that Lucent GK book of science, of Lucent book is there of general knowledge. In that there is a portion of science, physics, chemistry and biology, all three are there. And some computer knowledge is also there, little bit information technology is also there. So you can read from there after reading the NCERT. So it will be a brief source, okay, for in a short period of time. And apart from this you also have to do the PT 365 of science, means for the current affair part of the science. So from this you can do the science part. कितने ईयर्स के पीवाईक्यू के एनालिसिस करना है फॉर प्रीलिम्स लाइक पॉलिटी? फॉर पॉलिटी तो एटलीस्ट आप 15 to 20 ईयर्स का कर लीजिए। ओके, बट जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे जो इवॉल्व होते हैं, जैसे इकोनॉमी हुआ या एनवायरनमेंट हुआ, तो ये आप 10 ईयर्स का कर सकते हैं, 10 या 7 to 8 ईयर्स का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पॉलिटी है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं या ज्योग्राफी है, तो इस तरह के में आप कम से कम 15 साल का कीजिए। आप एनालिसिस क्या उनको अटेम्प्ट ही कर लीजिए तो आपको धीरे धीरे एनालिसिस हो जाएगा। और जैसे हिस्ट्री है पर्टिकुलरली, उसमें भी आप पीवाईक्यू कीजिए 15 to 20 ईयर्स का, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ओके, तो कर लीजिए आप 15 to 20 ईयर्स का। सर रिवीजन स्ट्रेटजी, ओके, तो रिवीजन स्ट्रेटजी में ऐसा है कि आपके जो भी नोट्स बनाए हैं यदि आपने, तो उनको आप रिवाइज कीजिए लास्ट के 10 to 15 डेज में, यदि प्रीलिम्स की बात करें तो। और उसके अलावा करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं तो वो रिवाइज कर लीजिए। नहीं बनाए हैं तो आपने जो करंट अफेयर की बुक पढ़ी होगी उसमें अंडरलाइन किया होगा, तो उस अंडरलाइन को कंप्लीटली गो थ्रू कीजिए, एक एक लाइन को जो भी आपने हाईलाइट किया उसको गो थ्रू कर लीजिए। और जहां भी आपने कोई बुक पढ़ी है जहाँ पे ऑलरेडी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप गो थ्रू कर लीजिए। या आपने कुछ एक्रोनिम्स बनाए हैं किसी भी चीज़ के, तो आप उन एक्रोनिम्स को रिमेंबर कर लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसा आपका रिवीजन रहेगा प्रीलिम्स से पहले। और आपका क्या कहते हैं, जब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसके भी आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, या आपने उसमें कुछ मार्किंग की होगी कि या ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ था, ऐसा इसमें ऐसा होना चाहिए था, मेरे को ऐसा सोचना था। तो उन प्रीवियस जो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए उनको भी गो थ्रू कर लीजिए। तो इससे मुझे लगता है आपका रिवीजन हो जाएगा। देन रंगनाथन सर, आपकी एज क्या है? एज आई एम 28 राइट नाउ।
ठीक है। Did can we prepare and crack in 10 months? Obviously and absolutely you can prepare in 10 months provided you give your 200% in those 10 months. Okay, so आप कर सकते हैं, and with proper guidance and with efforts in right direction you can definitely do it. Okay, then है सर मेंस कैसे प्रिपेयर करें? मेंस कैसे प्रिपेयर करें? ओके, तो सबसे पहले तो आप अपने बुक्स को पढ़ लीजिए, जो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम या जो भी आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है ही, देन ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग है, अपना एनसीईआरटीज है, ये सब बुक अपना पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद सॉल्व्ड क्वेश्चंस को देखिए, किसी भी टेस्ट सीरीज के सॉल्व्ड क्वेश्चन देखिए, या फिर अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं उनके जो सॉल्व्ड पेपर्स हैं वो देखिए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का आंसर लिखना है और किस तरह के आंसर लिखने के लिए मुझे कैसा नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो व्हेन यू विल रीड दैट बुक अगेन, देन यू विल बी हैविंग इन योर माइंड दैट these kind of questions are asking and this kind of content I have to put in the answer. So for this content I have to focus on these 4 lines in this particular topic. Okay, so उस वे में आपको तैयार करना पड़ेगा, और ग्रेजुअली आप धीरे धीरे आप उनका नोट्स बना लेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स, जो जैसे कि एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक टॉपिक दे रखा है, उसमें 4 पेज दे रखे हैं, लेकिन 4 पेज में से आपकी काम की सिर्फ 10 ही लाइन है, तो 10 लाइन को आप ब्रीफ में 10 पॉइंट के फॉर्म में आप नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका वो चैप्टर हो गया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसे करके आपका नोट्स ग्रेजुअली बनाएंगे विथ सिंक इन सिंक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस। ओके, तो आपका ऐसा करके मेंस प्रिपेयर होगा। Modern is history spectrum sufficient for mains? Yes, I think spectrum is sufficient for mains. And apart from this, if you want to do anything, you can do NCERT Bipin Chandra. Okay, so these two are sufficient. And apart from this, the previous year questions as well. Okay, so these 3 things you should do. Then mapping part for 2023. मैपिंग के लिए आप हर एक, जैसे इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी कोचिंग्स ने डाल रखा है मटेरियल कि हर एक हर एक कॉन्टिनेंट का उन्होंने मैप डाल रखा है। देन हर एक कॉन्टिनेंट के आसपास जो भी स्ट्रेट्स होती है या जो आइलैंड होते हैं, इन सब का भी उन्होंने मेंशन कर रखा होता है, तो इसको डाउनलोड कीजिए या मार्केट से खरीद लीजिए। और उसके अलावा एक जो मैप की जो आउटलाइन आती है वो भी आप मार्केट से खरीद लीजिए, वर्ल्ड एंड इंडिया बोथ, ठीक है। और वर्ल्ड के मैप में वो मार्क कीजिए, उसमें से देखकर जो आपको किसी कोचिंग की वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है उसमें से देखकर कि टोरेस स्ट्रेट कहाँ पर है या ब्लैक सी कहाँ पर है, वो आप मैप की आउटलाइन में आप ड्रॉ कीजिए कॉन्टिनेंट वाइज, और ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे वो चीजें आ जाएंगी, फिर वो आप एक वर्ल्ड मैप में भी फाइनली वो ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करके आपका हो जाएगा। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद कॉलेज में व्हाट यू कैन डू इज यू डू द एनसीईआरटी बुक्स, start doing the newspaper, and apart from them if you have time, then you also go through the previous year question papers of mains as well as prelims, and if you get more time even then you do start making the notes as well. Okay, and from time to time get those notes checked from some experienced people or some qualified people, so that you do not go in the wrong direction. Okay, so this is the way you can prepare in the कॉलेज। सर मैं अभी 2023 वाला एग्जाम देने जा रहा हूं, तो सर मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स भी नहीं बनाए हैं, तो सर क्या विजन की पीटी 365 सफिशिएंट रहेगी? यस, इफ यू हैव नॉट मेड एनी नोट्स देन विजन पीटी 365 वुड बी सफिशिएंट। डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज यू डू नॉट हैव मच टाइम टू गो थ्रू ऑल द करंट अफेयर बुकलेट्स, सो बी कॉन्फिडेंट दैट पीटी 365 वुड बी सफिशिएंट। सर ऐसे का प्रिपरेशन कैसे करें? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन। सर एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक सफिशिएंट है या फिर कोचिंग नोट्स भी स्टडी करने चाहिए? सी एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स आर सफिशिएंट बिकॉज जो कोचिंग वाले जो नोट्स देते हैं वो भी तो इन्हीं बुक्स से देते हैं ना, वो भी कहीं और से नहीं लाते हैं वो नोट्स, तो ये बुक सफिशिएंट है और इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे इनमें से जो भी क्वेश्चन आता है वो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, देन
Sir, haven't prepared optional mains yet. Should I skip attempt or not? Many officers have told yes, it's possible. So what to do? Okay, so it depends upon your preparation of prelims. If you are confident that you are able to qualify the prelims, or you are right now getting 80-85 marks in your prelims mock test, then you can definitely attempt prelims, so that you get to write the mains. Okay, and in those 3 to 3.5 months you can prepare optional. Okay, by summarily going through some books. Some books are there in every optional, through which you can prepare the optional briefly, where you can get to 40 to 50 marks. Okay, so you can definitely do. यदि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं प्रीलिम्स में, भी 20-30 ऐसे आ रहे हैं, तब यू कैन गिव ए रीथिंक टू दिस थिंग. ओके, देन सर ऐसे के प्रिपरेशन कैसे करें, हमें कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा. आप एक काम कीजिए, आप ऐसे के प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पर वीडियोस काफी सारे अवेलेबल हैं. ओके, बाय कोचिंग्स एज वेल एज बाय द टॉपर्स. तो उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप ऐसे की बिगनिंग कैसे करें. बिगनिंग इन द सेंस कि सबसे पहले ऐसे के 3 पार्ट होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन. और फिर उसके अलावा फिर आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना, क्या क्या कंपोनेंट्स आपको डालने हैं, बॉडी में आपको क्या क्या कंपोनेंट्स डालने हैं, क्या क्या आर्गुमेंट्स आपको पुटअप करने हैं. सिमिलरली कंक्लूजन में आपको फ्यूचरिस्टिक कैसे दिखाना है, उसको जो फ्यूचरिस्टिक या वर्ल्ड का जो पीस है उससे कैसे लिंक करना है. तो ये सब चीजें आपको यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोज है, आप उनको देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. और इसके साथ साथ आप कोई सॉल्व्ड जो ऐसे का बुक आती है, जैसे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में जो ऐसे पूछे गए हैं उनके सॉल्व्ड आंसर्स होते हैं, तो आप उनको भी पढ़िए. तो इन दोनों चीजों से आपको समझ में आ जाएगा. सर आपकी बुक लिस्ट क्या थी? ओके, बुक लिस्ट में ऐसा है कि देखिए, बुक लिस्ट काफी लंबी थी. मतलब तो प्रीलिम्स में तो जैसे अपार्ट पॉलिटी में एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत. ज्योग्राफी में जीसी लियोंग एनसीईआरटी, एंड कुछ पीएमएफ आईएएस के कुछ नोट्स थे. एंड इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की जो बुक आती है वो थी. हिस्ट्री में, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम थी प्लस एनसीईआरटी. और दूसरा एंशिएंट में जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वो थी. आर्किटेक्चर में फाइन आर्ट्स की बुक थी एनसीईआरटी, एंड देन नितिन सिंघानिया थी. उसके अलावा क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी. इकोनॉमी में मैं श्रीराम आईएएस के नोट्स पढ़ता था. और उसके अलावा, और इन सब के एडिशन में आपको करंट अफेयर्स हमेशा ही सेंटर में रखना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब में करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो वो भी आप करते रहना है. I am 25 years old, unemployed. Can I start preparing now, or I am late? No, you are not late. You can start preparing right now, but I would suggest you to uh, it, and also it depends upon your financial condition, okay, of your family, and of yours as well. Because if your family is financially sound, then you can start preparing for UPSC right now. Okay, there is no issue in that. But if you are not able to afford that time, or that if you are not able to afford the preparation right now, then you can do certain preparation for some other job. Okay, or you can do some job which may pay you 10 to 15,000, and then apart from with that job you can do the preparation. Okay, so it depends upon your financial situation. It is subjective. Sir, I used to score 90, 120 in sectionals of vision, but now in full length of vision I am scoring 70, 80, but again fine in PYQ. What should I conclude from? Okay, so don't worry about this. Then it sometimes happens, like in some of the subjects, the questions asked are very tricky, so don't worry at all. So whenever you will prepare the other subjects as well, like if you are getting lesser marks in history, then if you will prepare the history, or you will revise the history again, then you will be able to get good marks in history as well, apart from the polity, geography, etc. So this I am answering to Ankita Tiwari. So don't worry about this. You just focus on your sectional test, and in the last, or in the month of May, you can start writing full length test. You will certainly get the better marks. Don't worry about that. एनवायरमेंट को कैसे तैयार करें?
उसमें क्वेश्चंस ज्यादा करंट अफेयर से आते हैं या स्टैटिक्स से? देखिए इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस दोनों से आते हैं, स्टैटिक से भी लेकिन उसमें ऐसा है कि स्टैटिक जो है दैट इज इन योर हैंड टू प्रिपेयर, ओके, बट करंट अफेयर्स में यू हैव अ लिमिट, whatever material is provided by the coachings, only that you can do, okay, because UPSC asks from various sources, so but you cannot go to other sources, so you have to stick to only one source. So static should be your static should be very strong. Apart from that, the whatever current affair you are doing, that should also be strong, and leave the other things and don't worry about, because this is a relative exam and you have to be ahead of your peers only. You don't have to get the 190 marks out of 200 in prelims, okay. So the other peoples would not also do this thing. So don't worry about this. Do one static good book and then one current affairs, that's it. Then आपका optional subject कौन सा था? My optional subject was anthropology. What should be 2 months strategy? I have already answered this for prelims. So simple, I will reiterate that strategy again. So simply right now you can attempt sectional mock test along with revising the sections of the exam. Sections mean the syllabus of the exam. Like if you are revising polity for 5 days, then attempt 5 days sectional test of the polity. Then again next 10 days or 5 days you are preparing economy, then attempt sectional test of economy for next 5 days. So like that you go ahead and for 1 month, then in next month you start to give them full length test of all the subjects along with revising of all the subjects. So that is the brief strategy. Sir, it's my third attempt, not have prepared optional and mains yet. So is it doable now after, as I am damn confused? Yes, definitely you can prepare after the prelims. So don't worry about that. Okay, briefly you can prepare, but to get above 300 or 320, then it may take little effort. But you will easily get to 40 to 50 marks by preparing in between the prelims and mains. Sir, which coaching is best for UPSC and is there no need of coaching? The need of coaching depend upon yourselves, okay. So if you are from the humanities background and you are continuously in touch with the humanities subject, then you may skip the coaching and you can directly read the NCRTs and other standard books, okay. But if you are away from humanities subject for long, like I was, I had last read the humanities subject in my class 10th and in 2008, and I was starting to prepare for UPSC in 2017, so it was almost 9 years. So for 9 years I was away from the humanities subject, so I had to take the coaching, and that was a wise decision, I would consider. So it depends upon your needs, okay. Your Telegram channel? Yes, I have a Telegram channel called Kalpesh, KLPSH underscore IAS. That is my Telegram channel. I would mention here. This is my Telegram channel. Then plan B is needed along with UPSC preparation. No, for the first 1 or 2 years, there is no need to have a plan B, because you are provided you are putting 100% in the UPSC preparation, then there is no need. And then after third attempt, if you think like I am not able to get marks even after putting my 200% in this exam, then you can think of having a plan B, okay. सर एनसीईआरटी ओल्ड या नई पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी आपको नई ही पढ़नी चाहिए, है ना, ठीक है। सर कैन यू गिव ए ब्रीफ आइडिया हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस आफ्टर प्री? आफ्टर प्री आप टेस्ट सीरीज, आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, और उस सेक्शनल टेस्ट सीरीज के साथ साथ अपना कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। जैसे पॉलिटी का टेस्ट है 10 दिन बाद, तो पॉलिटी पढ़िए 1 वीक के लिए, और पॉलिटी का है और जो जो टॉपिक है उनको पढ़िए। तो ऐसे करके आपका 2 महीने में पूरा सिलेबस वो खत्म करवाते हैं, और उनका मॉक टेस्ट दीजिए एंड ऑफ द वीक, और फिर आप लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, पेपर 1 2 3 4। तो ऐसा करके आप मेंस तैयार कर सकते हैं। सर इकोनॉमी के लिए क्या है? सर इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह या संजीव वर्मा विच बाय करें?
इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह आप पढ़ सकते हैं, संजीव वर्मा भी पढ़ सकते हैं, बट संजीव वर्मा काफी ब्रीफ में है। तो संजीव वर्मा से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जाएगी, लेकिन फैक्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप संजीव वर्मा प्लस रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, या सिर्फ रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। ओके, बट संजीव वर्मा के साथ आप कोई और बुक आपको ऐड करनी पड़ेगी। संजीव वर्मा इज गुड बुक कंसेप्चुअली, बट उसमें फैक्चुअल थोड़ा कम दे रखा है, तो कई बार फैक्चुअली चीजें पूछी जाती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको संजीव वर्मा को किसी और बुक से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर यू आर सो हम्बल, थैंक्स अ लॉट। ओके, so where we can contact you? Okay, there is one my telegram channel, that is kalpesh_is @kalpesh_is, you can contact me there. सर 10 से भी ज्यादा सब्जेक्ट है और फिर करंट अफेयर्स, आई वुड क्लोज दिस in 5 minutes. Okay, so please no more questions, and if there are any other questions, then I will answer it on my telegram channel. Okay, so I will take up only till Ankita Tiwari's last question. So what is this? सर 10 से भी ज्यादा सब्जेक्ट है और फिर करंट अफेयर्स भी है, तो सबको रिवाइज कैसे करें? क्योंकि अगर एक बुक को बार बार रिवाइज कैसे करें, क्योंकि एक दो बार में तो सब याद नहीं होता। ओके, तो इसमें देखो टाइम लगता है, तो रिवीजन के लिए ऐसा रहता है कि आप हर लाइन को रिवाइज नहीं करना है हर बार में, समझ रहे हैं आप? कि जैसे आप जो बुक कोई पढ़ी है एनसीईआरटी, तो आपको हर लाइन नहीं पढ़नी है हर बार में। जब जैसे ही आप रिवीजन करेंगे दूसरी बार तीसरी बार, तो आपके जो हाईलाइटेड पोर्शन है वही आप पढ़ेंगे। हाईलाइटेड पोर्शन के बाद आप थर्ड फोर्थ टाइम में आप नोट्स बना लेंगे, और फिर आप नोट्स ही पढ़ेंगे, बुक को साइड में रख देंगे, बुक को हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप नोट्स को ही रिवाइज करेंगे। तो ऐसे करके आपका जो मटेरियल है वो कंसाइज होता जाता है और आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, what do you mean by 100%? I did not get your question, sir. Tell your optional strategy. Optional strategy I would take on some other time, or you can go through my YouTube channel as well. I have mentioned strategy for anthropology there. You can go through that video and you will be able to get a decent idea about the optional strategy for anthropology. And if you get any more question, then you can ask me on Telegram. Sir, can UPSC be prepared under 100 rank along with a 9-5 software engineer? Yes, definitely. There are many people who are doing, because as a software engineer, you must be getting 2 days weekend. So on weekend, you put your 100% utilize that time, and apart from that, after 5 p.m. on weekdays, you can do, or before 9 a.m. in morning, you can do. Okay. सो डेफिनेटली इट कैन बी डन। सर मेंस के लिए कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें? मेंस के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना है एक तो करंट अफेयर से, एक आपकी स्टैटिक बुक से, और जो जिसकी स्टैटिक बुक्स अवेलेबल नहीं है वो आप कोई कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं। इन तीनों को मिला के आप अपना नोट्स बनाइए और उससे आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आई हैव डन अबाउट 25-30 सेक्शनल विद डिसेंट स्कोर इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू से is not case with the vision full length, got 110 in Waziram open test. Okay, so Ankita, what you can do, you can write test full length test of the other coachings as well. Okay, like Insight is there, Shankar IS as well, Waziram is there, and some of the vision test may be little bit difficult, so don't worry about that. So diversify your full length test from several coachings, and then try to understand. If you are getting lesser marks, then also then there may be a cause of concern. Should I stop a test for a while? Okay, you can do not stop taking tests, but do revision and then attempt tests. So don't worry about attempting tests right now. Okay, so attempt tests and take those tests as part of your learning. Okay, do not think like you are evaluating your performance for at least 1 month. In the last 1 month, you are evaluating your performance. Okay, so don't take the score of any particular test in your heart, and let it be whatever score is there. Although you are getting good score in sectional tests, so be happy with that. Sir, how did you make notes for GS for mains? I will answer later. Vision Abhyas test, it is good. Vision Abhyas test is good, but do not go on the score. But
but analyze your rank with your peers. If out of 6,000 people who are appearing in this test, you are getting under 500, then it's wonderful. If even if you are getting 75 marks, well, how does it matter? You have to get ahead of your peers. Okay, so analyze your rank rather than in this score. सर आंसर राइटिंग चेक किससे करवाएं, क्योंकि सर आई हैव नो एनी गाइडेंस. देयर आर प्लेंटी ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द मार्केट. You just join anyone. And even if you don't want to join those test series, there are plenty telegram channels as well, which are run by experienced people, so which are affordable as well. So you can write your tests there and you can upload your tests there, and they will evaluate and give you the marks. Thank you, sir. She said, okay. Thank sir. Sociology versus, this is the last question I am taking. Sir, sociology versus anthropology, which is better, optional and high scoring? So both are equally high scoring. 1 minute. So both are equally high scoring, sociology as well as anthropology, but it depends upon your interests. Okay, so so if you are comfortable with reading certain humanities subject, then sociology is better. Or if you have certain background in biology or you have medical background, then anthropology is better. Because in anthropology there are two portions: physical anthropology and archaeology, where this knowledge of biology comes to use. Okay, so if you are comfortable with biology things, then you can definitely opt for anthropology, and it will reward you. But if you are not comfortable, तो फिर then आप sociology ले सकते हैं, because sociology also helps in essay writing, as well as in your ethics paper also, and GS also. So that is a call you have to take. My graduation subject PSIR, but choose optional subject anthropology. No, I need. There is no problem in that. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Girlfriend out, sir. She was very tensed. Okay. Okay, thank you very much. So I am closing this live session. Okay, so you can contact me on Telegram, as I have already said, if you have further doubts. Okay. Okay, bye bye. Thank you.